को सोचना कोई शह इस तरह असी अपने पट्ठे पे वड्डने फसल है दरख्त पे कटने सा ते उत्थे उन्हें फैर मारी किने फैर मारी फैर उन्हें को डाले थी अब्दुलरमान है कि ना मैं नहीं जानना किया ध्यान देने किने फैर मारे मेट्रो सिटी वाले की वजह बनी वजह है नजायज कब्जा करने जमीन दी भी कोई नहीं है फसल साड़ी तबाह की ने मौका जाके देख सकने उन्होंने दरख्त कटने उन्होंने कि 2 दिन टाइम है दरख्त काट रहे हैं अपने फसल काट रहे हैं जमीन ऐसे तरी मल्ली जा रहे हैं उन्होंने जल्दी करो और जल्दी करो और जल्दी करो लेट ना हो जाएंगे जी बच्चे मर जाने अपने वीरों की कहां जाने और सारा है कोई पंडित जी स्मैक्टो ना ले और जुल्म कीता कोई पुलिस साथ नहीं देनी कोई बंदा नहीं रखवा भी सारा नार ले लेना कालम बोलते रहो कोई नहीं रोकना लाओ लाओ पहला माइक की शिफ्ट करो और दूसरा बच्चे मर अरे एक और भालने भी चाहिए ना आसफ सुना लो सही है देऊंगा के बोला हां लपड़ा ना जरा मुसलमान नो जेड़ा जरा ने को अगर आप छोड़या नहीं हो ओ अल्लाह से वैसे भी गड्डी आ रही है जुल्म करना है वो और गरीबां पे जुल्म करना है कोई बंदा नहीं सुनने वाला नहीं सुनाई भाई अल्लाह की बात मानी एक ही तस्वीर बना दे जान लगे ना मार छरी गोली किने फैर मारा उन्हें कि जत्था लगी है पीछे लगी है लाल खोलो पे बचानी क्यों नहीं रहे हो केड़ा मुझे बुला दे बुलाओ आई के टिफिन ना वाली आई पटन खाना ठीक है मैं लास्ट में बाजू दे ओ लड़ाई हो गई पैसे का बंद करो ये ना बंद करो उन्हें बुलाओ ना वो बह जाएंगे तो और ज़ैद लालेज़र को न्यूज़ नहीं जल्दी करो लड़ाई हुई है तो खैर क्या चौपर भी लग गया सारे मतलब बच्चे मार जान सब ना ये सीधी बात हो गई जल्दी करो कोई माई बोल रहा है पति ने भी की थी वार्निंग ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ कहदी ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਦਰਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਜਾਓ
فائرنگ ਸਰ ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ خیر مال چلے گا گئی ہے میں مائی کے چکن لیا انہاں کو پٹا نال مینوں چلا دے اور دو بزرگ بندے انہاں کی مار مار کے انہاں مار مار کے 11 بندے گئے جس کی دل کرنا لے مار جی ایف آئی آر پہلے دے جد بڑی پھر چک سا اور منبی نہ لگنے بندے چکر لے کے ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ میرا بلیا نہ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ کہ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ سر پہلے نمبر تے ایف آئی آر لا ਪਰਚਾ ਦੇਖੋ ਨਾ جڑا ساڈا رائٹ ہے ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅਪਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਲਮਹੇ ਹਰ ਜੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਭਈ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਪਕੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਡ ਵੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਚੂਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਗੁੜਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ کیا ٹاک ہوئی ہے اور کیا آپ نے ان کو جی میں نے یہ انسیڈنٹ ایسے ہوا کہ آج میٹرو سٹی کے گارڈ وغیرہ اور ان کی جو مشینری تھی وہاں پہ کام کر رہی تھی چوہا کریالہ گاؤں ہے وہاں پہ ان کا کلیش ہوا ہے فائرنگ سے گاؤں کے لوگ زخمی ہوئے ہیں 2-3 میٹرو کے لوگ بھی زخمی ہیں اس کے بعد پھر یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایوالو ہوئی میں آیا ہوں یہاں پہ ان کو میں نے یقین دلایا انصاف کا کہ ہم انشاءاللہ پوری طرح جو سرکاری مشینری ہے وہ انصاف دلانے میرے سارے معاملے کو انشاءاللہ منطقی انجام تک ہم پہنچائیں گے اور یہی میں یقین دہانی ان کو میں نے سب کو کروائی ہے سر ابھی آپ کا جو ہوا ہے وہ ایف آئی آر کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو اس پہ سر کیا جی ایف آئی آر ہوگی ڈیفینیٹلی سارے معاملات کی ایف آئی آر جو ہے وہ لیگل کاروائی ہوگی اچھا سر یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی میٹرو سٹی کے گارڈز کی طرف سے مبینہ فائرنگ کی گئی اور آپ کے پاس اہل علاقہ کے اس سے پہلے ان پر ہی ایف آئی آر نہیں اس سے پہلے کے بعد ایسا نہیں کیا کہیں گے اہل علاقہ کی طرف سے بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں پولیس نے اس میں غیر جانبداری کا کردار شروع سے کیا ہے میٹرو پہ متعدد ایف آئی آر ہم نے کی ہیں قانون کے مطابق جو 2 ایکسپائر ہوئے ہیں اس کی تصدیق آپ کیا پولیس ذرائع کے مطابق کرتے ہیں ایک کی تصدیق ابھی تک نہیں خاتون بھی ہے خاتون بھی جو نہیں ہوگا ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਆ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਚੋਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ انشاءاللہ اس میٹرو کی جو ضلع چ نقصان آیا تھا ضلع جتھا میٹرو ہو گیا ملاوا کرے گا جگہ جتھا ملک دی میٹرو ہوگی جتھا ملا کریں گے انشاءاللہ ہر طریقے ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ خلاف انشاءاللہ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਬਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ پہنچے सबसे पहली बात तो ये है कि मैं लोकल था नहीं जब वाक़या हुआ है मैं बहुत दूर था कहीं पे मैं उस वक्त भी रास्ते से ही आपको कॉल करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैंने बात की मैं आना चाहता था मौके पे इस वक्त भी ट्रैफिक ब्लॉक है जीटी रोड की आपको पता है मैं लोकल होने के नाते मुख्तलिफ रास्तों का मुझे पता था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ अगर मैं पहुँच पाता तो मैं शायद जाता लेकिन इसमें भी शक नहीं है کہ شاید میری صحت اس قابل نہیں ہے کہ میں عام جنرل پبلک میں کھڑا ہو سکوں مجھے ہلکا سا جھٹکا لگے تو میرا بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ تھا لیکن میں جانا چاہتا تھا لیکن اسی وجہ سے کہ ٹریفک کی بلاک ہونے کی وجہ جی ٹی روڈ پہ راستہ ہی نہیں تھا کہ میں وہاں تک جا سکتا اور مجھے یہ بھی پوزیشن نہیں پتہ تھا کہ آگے لوگوں کی مطلب سچویشن کیا ہے لوگ کس حد تک ہائپر ہیں کس حد تک وہ احتجاج کر رہے ہیں تو بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں لیکن میں جانا ضرور چاہتا تھا لیکن ٹریفک کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا سر کوشچن تو نہیں ہے ایک گزارش ہے کہ ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ بہت زیادہ ٹریفک ہے آپ لوگوں کے یہیں کے رہنے والے ہیں آپ کو رستے پتہ تھے ہم سب کو پتہ ہے جو دور دراز سے فیملیز آ رہی ہیں نا وہ بہت زیادہ پریشان ہیں ابھی موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریفک پولیس جو اہلکار ہے وہ یہاں پہ ناکہ لگا کے تو وہ دیہڑی تو بنا لیتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں
इस वक्त उनकी ज़रूरत है। तो गुजारिश है कि आप ऐसा कुछ करें कि वो आएँ और यहाँ पे खड़े हों और लोगों को कम से कम गाइड तो करें जब तक ये मसला चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। DPO गुजरात जो हैं वो लोकली मौजूद हैं, अभी उन्हें मैसेज कन्वे करता हूँ इसके बाद इंशाल्लाह। ट्रैफिक खोल गई। देखो ये मुश्तरका खाते साढ़े इत्थे चलते ने, सिलसिला चल रहा क्योंकि है ही रिकॉर्ड ही साਡਾ मोस्टली है ਜਿਹੜਾ ਉਹ इस्तेमाल नहीं होया मुश्तरका है। उसकी वजह तो बाद दफ़ा उसਦੇ ਵਿੱਚ मैं समझदा भी मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ भी फर्क पै ਜਾਂਦਾ है कि ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि उसने उस फर्द ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ उसਨੂੰ उठा के ला ਲਈਏ। एक नंबर खसरे ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ एक नंबर खसरे ਦਾ फर्द है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਨੰਬਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਕੀਅਤੀ ਫਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਲਕੀਅਤੀ ਫਰਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਨੰਬਰ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। यही प्रॉब्लम पेश आ रहा है और इससे चीज़ का फ़ायदा उठा के मेट्रो सिटी वाले वो फ़ायदा उठा रहे हैं, नहीं तो लोगों नाल ज़्यादती कर रहे हैं। जो साहब इसराइल मगीर खासकर इस एरिए सोसाइटी जो बन रही हैं ये पहला वाक़या नहीं है और देखा गया है कि जिसले ज़्यादती हुई है पुलिस को उनको डंडी मार देती है। क्या पुलिस की तो मिली भगत है या कानून दे के बेबस है इन्हें लोगों दे के वो प्लीज़ किसी हद तक शायद थोड़ी गल ठीक हो, लेकिन मैं उस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि अगर इससे पहले पुलिस ने या किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई डंडी मारी है तो आइंदा हम मारने नहीं देंगे। लेकिन वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि मेरे साथ कम से कम कोई साइल तो खड़ा हो। अगर कोई साइल खड़ा होगा तो इंशाल्लाह ऐसी ज़्यादती किसी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं नहीं होने दूँगा। मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि कहीं जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, कोई खड़ा तो हो। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इस इशू को हम यहीं नहीं ख़त्म करने वाले, कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, इस इशू को मैं यहाँ पे ख़त्म करने वाला नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह जो भी पहला इजलास पंजाब असम्बली का आएगा मैं उसमें खड़े होके इंशाल्लाह इस इशू पे ज़रूर बात करूँ ताकि हायर अप्स तक ये बात पहुँचाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि FIR अभी DPO ने मुझे भेज दी है। FIR में मतलब इस वक्त दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस वक्त भी CM ऑफिस आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले, इसमें आने से पहले वो मेरे साथ राब्ते में है। मैं अभी भी जो आपके सामने उधर खड़े होकर बात कर रहा था वो CM ऑफिस में ही बात कर रहा था। उनके बकौल इस वक्त भी यही है, उनकी वर्शन यही है कि हमारा कतई तौर पे कोई वास्ता नहीं है, कोई तल्लक नहीं है। अगर कोई हमें जी करें आप सिटी MP हैं, हुकूमती जमात में हैं और ये सोसाइटीज़ जो है वो आवाम के साथ ज़्यादती कर रही हैं। आपने बताया कि आपके पास आवाम शिकायत भी लेके आ रही है, तो आप इंतज़ामिया को एक वाज़ेह मैसेज क्यों नहीं दे रहे या एक वाज़ेह मैसेज दें कि जो गरीब आवाम की ज़मीनों पे कब्ज़े किए जा रहे हैं। इससे पहले भी एक डॉक्टर की ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया कुछ दिन पहले, उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मीडिया ने उसकी खबरें भी चलाई और आज इसके बाद एक कीमती इंसानी जान ज़ाया हुई और तशवीश ये है कि दो की हालत तशवीशनाक है। अगर आज इन्हें यहाँ पर ना रोका गया तो कल मज़ीद नुकसान का भी खदशा है। अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे वाज़ेह तौर पर और इंतज़ामिया को क्या पैगाम देंगे? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है मेरी सारी गुफ्तगू जो है वो बड़ी वाज़ेह पैगाम था और इसमें तो कोई शक नहीं है। पहली बात आज के वक़ूअ के हवाले से मैं कर दूं कि मकतूल की फैमिली जो है मैं उनके साथ हर लिहाज से खड़ा हूँ। उन्हें कानूनी मदद चाहिए, उन्हें अगर कोई भी मशवरे के तौर पे मेरी मदद चाहिए, मेरी पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से मदद चाहिए, उन्हें जो भी मदद चाहिए मैं उस मदद के लिए हाज़िर हूँ। मैं उनके शाना बशाना खड़ा हूँ। सिर्फ उनके साथ नहीं, जिनके साथ पहले ज़्यादती हुई है उनके साथ भी अगर आइंदा कोई ये समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ और खड़ा हूँ। खड़ा होना चाहता हूँ का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो मादर के साथ इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आपने खड़े होना है तो मैं खड़ा हो पाऊँगा। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो मैं कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ ज़्यादती होने जा रही है या हो रही है या वो समझते हैं कि उनकी ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा हो रहा है
वो आएँ, वो बात करें, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और हर हाफिस में जाके, हर जगह पे जाके, जहाँ भी हम अपने राइट के लिए जो दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, मैं उनके साथ जाने को हाज़िर हूँ। थैंक यू। कोई चीज़